Good morning, everyone. I am audible to all of you. Yes, sir. Okay, thank you very much. So we wait for 1 minute and we start today's lecture. Okay, so wait for 1 minute. Evaluation of mobile phone system. In previous lecture, we have completed 1G and 2G. But going further, we see that the evaluation of mobile phones before we look into the this mobile phone system, evaluation of mobile phones, how to different types of mobile phone comes into in this era. So look at this. In 1983 to 1990, this is the evaluation of mobile phone. That is, the 1983 was got the first ever portable mobile phone in the shape of Motorola Dynac 800X. Its cost is I waiting 4,000 USD dollar and was the huge status symbol at the time. 2 years later, the first mobile phone call on UK was made. The Vodafone chairman, Sir Ernest Harrison, the lucky receptionist. In 1989, Motorola follow up the DAC with 9800X. Income with the fold down keyboard cover and set of standard for flip phone from factor seen throughout the 90s. So look at this phone. This is first phone in 1983 to 1990. Then look at this phone. That is, you must all aware about this phone. GSM first launched Europe 1991 with the Orbitic TPU 900 first to market, but it was until 1992 that mobile were no longer restricted to business use. Mass production paved the way to cost-effective consumer handset with digital display. This, this is the in 1991 to 1994. This type of mobile phone comes. In 1994, from 1995 to 1998, a splash of color means before 1995 there is a black and white mobile phone is present in display in respect to display, but from 1995 it is some of the display is colorful. That is this type of mobile phone is come between 1995 to 1998. Although it is offered for color, the Siemens S10 brought mobile phone display to life for the first time in 1997. The same year, Honor launched the Global Handy, the first device without the external aerial. Customization are kick off the big way to Ericsson offer variable color font keyboard panel. My voice is not audible to all of you. Hello? Sir, it's audible, sir. Huh? Audible, sir. Audible. Okay. So next is 1999 to 2002. Look at this type of mobile phone is present. Growth of features phones. In 1999, Nokia unveiled the 7110, which was the first device to take the advantage of web, means web browser. It means to access the information over the mobile wireless network. A year later, Sharp launched the world's very first camera phone. फर्स्ट कैमरा फोन कब आया देखो, ये जो कैमरा फोन है वो 1999 के बाद में आया है कैमरा फोन. आप जब जो इस्तेमाल करते हैं ना फोन, द JSH04, it was available in Japan but signaled the start of public obeisance the phone photography. However, it was until 2002 and release of the Sony Ericsson T68i and it clip-on camera that Western market started to take the interest in the camera phone. So before 1999,
or before 2002 there is no camera phone present. So look at this, the what is the age of your camera phone. So next, this is the 2003 to 2006 mobile data revolution. The implementation of 3G took download speed up to 2 Mbps in March 2003, which is the first to offer the service in UK. RIM brought mobile email to the messages with the range of popular BlackBerry device like 8100 Pulse. The advent of from facing camera in 2003 on device such as the Sony Ericsson Z1010 meant video calling become possible but not popular. So look at this 2003 to 2006 mobile data revolution. Next onward, 2007 to 2010, getting smarter. Sweeping the scrolling replaced the traditional button method of input. The LG Prada being the first touchscreen to market ahead of the Apple iPhone. तो टच स्क्रीन फोन कब आया मार्केट में, ये इसके बारे में ये है. So फर्स्ट टच स्क्रीन फोन जो है ये LG Prada being the first touch screen phone to the market ahead of the Apple iPhone in May 2007. However, Apple proved to have both the stronger brand and superior knowledge to capacitive touch screen potential. So before 2007 there is no touch screen, there is all this dialer pad, keypad type of mobile phone. In from 2007 there is a revolution and the phone come into touch screen. So next one, 2011 to 2014, live campaigning. Smartphone become the increasingly center in modern life, offering much more than just communication features. The UK first 4G service launched in 11 cities in 2012, taking download speed up to 12 Mbps. तो देखो 4G सर्विसेज कब लॉन्च हुई, 2012 में यूरोप में, डाउनलोड स्पीड अप टू 12 Mbps. Voice recognition become commonplace. Voice recognition become commonplace. First with Google Voice. Before Apple launched Siri into the market, Samsung added a built-in heart rate monitor to their flagship Galaxy S5 to capitalize of growth in the mobile health and fitness. So next, it is 2015 to 2018. The global adaptation of 4G versatile improve the video streaming and video calling capabilities. Screen size continue to grow to maximum the experience these features. With the iPhone 7 Plus display now 57 larger than the original iPhone from 2007. Mobile payments also emerged with Apple Pay and Android Pay offering use of possibility of buying things with this smartphone. So ये स्मार्टफोन का ग्लोबल अडेप्टेशन, मतलब 4G का ग्लोबल अडेप्टेशन 2015 के बाद ऐसे हुआ कि सभी लोग कॉलिंग की बजाय, अभी आप देखो आप कितने कॉल करते हैं दिन में, उसके बजाय आप व्हाट्सएप के ऊपर ही आप ज्यादातर काम करते हो, आपका सब चैटिंग, या कॉल भी करते हो आप तो व्हाट्सएप थ्रू कॉल करते हैं. सो ये चेंजेस यहाँ से आए, 4G वर्सेटाइल हुआ, आपका वीडियो स्ट्रीमिंग के ऊपर और वीडियो कॉलिंग के ऊपर सभी चीज गई, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड वीडियो कॉलिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर सब 2015 से 2016 तक गया. और प्रेजेंट डे अभी देखो द सुपर फास्ट वर्ल्ड, तो he launched the UK first 5G service in 6 cities through May 2019. The first generation network promises vastly superior data speed and reliability, boosting ultra high resolution video streaming and mobile gaming. Handset design trends continue to push for all screen experience, with OnePlus introducing the pop-up selfie camera to its flagship 7 Pro device to do away with the not although together. So देखो ये अभी का लेटेस्ट 5G सर्विस लॉन्च हुआ है 2019 में.
यूके के अंदर। तो अपने अपने यहाँ पे भी ये सब चीजें चल रही है। सो ये हमने सब आपके मोबाइल के इवोल्यूशन आपने सभी देखे। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कब स्टार्ट हुआ। तो उसके बारे में इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि इंडिया के रिलेटेड तो मैं मेरे पीपीटी के ऊपर आता हूं। So some of the interesting topic regarding India's when launched the first mobile phone in India. So in 31st July 1995, in 31st July 1995, first call made between Pachim Bengal Chief Minister and that time current telephone minister, that is telecom minister of nation. So this call made between Kolkata and Delhi in 31st July 1995. तो यहाँ पे देखो अपने नेशन में फर्स्ट मोबाइल से कॉल कब हुआ? 31st जुलाई 1995। और वो हुआ जो ज्योति बसु थे उस टाइम पे, उस टाइम के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनके बीच में, और अपने नेशन के जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे वो सुखराम थे उस वक्त, उनके बीच में ये टेलीफोन कॉल चला। और फर्स्ट मोबाइल फोन कंपनी जो थी वो थी मोदी टेक्स्ट्रा, इज वन ऑफ फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटर कंपनी इन इंडिया। This company made by Modi Group and Australian telecom company Trextra, ये दोनों के बीच में की कोऑर्डिनेट, मतलब उनका दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये कंपनी बनी थी। फॉर उसके लिए देखो ये मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आउटगोइंग के लिए कितने पैसे लगते थे और इनकमिंग के लिए कितने पैसे लगते थे उस वक्त 1995 में। देखो और आज की आपकी दुनिया देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो फर्स्ट 1995 में आउटगोइंग कॉल 16 रुपीज 40 पैसा पर मिनट, म्हणजे आपको हर एक मिनट के लिए 16 रुपया 40 पैसे लगते थे आउटगोइंग के लिए, और इनकमिंग कॉल के लिए 8 रुपीज 40 पैसे, 8 रुपीज एंड 40 पैसे। सो ध्यान में रखो कि आउटगोइंग के लिए भी पैसे लगते थे और इनकमिंग के लिए भी पैसे लगते थे। तो 8 रुपीज पेड करना पड़ता था आपको एक मिनट के लिए, अगर आपको आपके पास कोई कॉल आता है तो। और आप अगर दूसरों को कॉल करते हैं तो कितना रुपीज लगता था? 16 रुपीज 40 पैसे। तो अभी देखो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनकमिंग कॉल लेते हो और आउटगोइंग कॉल भी थोड़ा रिचार्ज किया तो पूरे महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो ध्यान में रखो 1995 में ऐसे चीज थी, मतलब ऐसे सिचुएशन थी कि कितने पैसे उधर उस टाइम पे लगते थे। 16 रुपीज मतलब सो मच हाई इन 1995, और 8 रुपीज इनकमिंग के लिए। तो ध्यान में रखो कि उस टाइम पे ना बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फोन होता था, और वो क्या करते थे, बहुत कम लोगों के पास वो नंबर भी देके रखे थे, मतलब इनकमिंग कॉल आया तो कौन 8 रुपीज देगा उसको। तो ये इसके लिए उस टाइम का ये था। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट 5 इयर्स मींस 1995 से 2000 तक अपने इंडिया में 50 लाख यूजर थे, मतलब 50 लाख यूजर पहुंच गए 5 साल के बीच में। सो अभी इसको 25 साल कंप्लीट हो गए। इसको कितने साल कंप्लीट हो गए? 25 साल। किसको?
ये जो 31 जुलाई मतलब अभी गया पिछला 10 दिन पहले, वो 25 साल कंप्लीट हो गए ये मोबाइल फोन इस्टेब्लिश होने के लिए इंडिया में। तो ये आपको बताना था related to evaluation of mobile phone around the world and evaluation of mobile in our nation. So पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन के बारे में। सो ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि 0G, this is the fixed mobile phone placed into particular areas or location. Then 1G is, these are the analog telecommunication standards that were introduced in 1979 and earlier in mid 90s and continue until the being replaced by the 2G digital telephones. And in 2G telephone, I already discussed about the 4 topics regarding that. That is the 4 types of 2G networks. That is, first is global system mobile GSM. Second one, that is IS 136. C, Pacific digital cellular PDC. And fourth one, that is Interium IS 95 code division multiple access. So going further into next, evaluation of mobile phone system 2.5G. So there is, look at this, this is 2G and this is 2.5G. So there is no 3G. There is a between 3G and 2G और 3G के बीच में ये 2.5G आया। तो ये क्या लेके आया, हमको क्या बताता है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। So 2.5G is denoted 2G system that has implemented a packet switching domain in addition to the circuit switching. तो यहाँ पे देखो सेकंड जनरेशन के बारे में क्या था, मैंने सेकंड जनरेशन में आपको क्या बताया था कि सेकंड जनरेशन में सभी चीजें जो है सर्किट स्विचिंग से कॉल के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे, मतलब कॉल आपसे बातें कर सके इसके ऊपर एम्फेसिस ज्यादा था। वो 2.5G में क्या हुआ कि आपका डेटा के साथ सॉरी कॉलिंग के साथ आप कुछ तो भी डेटा भी भेज सके, मतलब इंटरनेट एक्सेस कर सके। तो उसके लिए 2.5 जनरेशन में क्या हुआ कि सेकंड जनरेशन के अंदर ही क्या हुआ कि पैकेट स्विचिंग का इंट्रोडक्शन हुआ। तो ये पैकेट स्विचिंग का जब इंट्रोडक्शन हुआ, इट इज कॉल्ड एज ए 2.5G। इन एडिशन टू द सर्किट स्विचिंग डोमेन, इट डजंट नेसेसरी प्रोवाइड फास्टर सर्विसेज, मतलब ये कुछ फास्ट सर्विसेज नहीं देता था, उसमें कम स्पीड में भी आपको डेटा मिलता था 2.5G में। सो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ 2.5G में जीपीआरएस इंट्रोड्यूस हुआ, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, जीपीआरएस। तो देखो फर्स्ट मोबाइल फोन जो, अब अगर आपने 5-6 साल पहले अगर कुछ मोबाइल फोन देखे होंगे तो उसके ऊपर जी आता है, या अभी भी आप अगर जो स्मार्टफोन नहीं है और वो सिंपल फोन है, मतलब बेस फोन, उसको भाई हम बेस फोन बोलते हैं, और बेस फोन के ऊपर नेट लगाया तो वहां पे जी लिख के आता है, जी। तो जी मतलब क्या, जीपीआरएस मतलब जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ये 2.5G में इंट्रोड्यूस हुआ। तो थोड़ा 2.5G और 2G के बारे में मैं थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन में आज बताने वाला हूँ। तो उसके बारे में 2.5G मतलब 2.5G के बारे में मैं थोड़ा आपको अभी बताने वाला हूँ। 2G टेक्नोलॉजी यूज सर्किट स्विच डेटा modems that limit the data used to single circuit switch voice channel. Data transmission in 2G are the generally limited to the data throughput rate of the individual user, and this rate is same order of magnitude of the data rate of the distinct speech code. So overcome that, मतलब 2G में क्या था कि डेटा रेट बहुत ही कम था, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या लाया उसने, 2G के अंदर एक और था कि 2G स्टैंडर्ड आर एबल टू सपोर्ट लिमिटेड इंटरनेट ब्राउजिंग एंड सोफिस्टिकेटेड शॉर्ट मैसेजेस कैपेबिलिटी। सेकंड जनरेशन में था कि आप शॉर्ट लिमिटेड इंटरनेट ब्राउजिंग कर सके एंड सोफिस्टिकेटेड शॉर्ट मैसेजेस भेज सके यूजिंग सर्किट स्विचिंग अप्रोच, मतलब आप सर्किट स्विचिंग का यूज करके डेटा भी एक्सेस कर सकेंगे। और जो अभी देखो आप एसएमएस भेजते हो, एसएमएस की सर्विसेज बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपके पास सभी व्हाट्सएप आ गए उसकी वजह से। सो शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज इज पॉपुलर फीचर ऑफ जीएसएम, ये सबसे पॉपुलर था वो उस वक्त, एंड अलाउ सब्सक्राइबर टू सेंड शॉर्ट रियल टाइम मैसेज
to subscriber in the same network by simply dialing a receptionist cell phone number. मतलब आपको सिर्फ वो टाइप करके उस नंबर को भेजा तो हो जाएगा. SMS first become the popular in Europe through the dominant network of GSM service provider. तो ये सेकंड जनरेशन में SMS भी था और थोड़ा कम रेट में आपको डेटा भी मिलता था. मगर अभी क्या हुआ कि द न्यू डेटा सेंट्रिक स्टैंडर्ड हैज बीन डेवलप. अभी क्या हुआ कि लोगों को ऐसे लगने लगा कि यार बहुत कम स्पीड मिल रहा है, तो कुछ ऐसा हो सकेगा कि इसमें कुछ तो भी सर्किट डाल के, कुछ तो भी नए चीज डाल के, कुछ तो भी नया चीज लाके डेटा थोड़ा फास्ट रेट से मिले. सो डेटा सेंट्रिक स्टैंडर्ड हैज बीन डेवलप that can be overlaid upon existing 2G टेक्नोलॉजी. मतलब 2G टेक्नोलॉजी में ही कुछ तो भी चीज ऐसे डाल सके कि आपको डेटा रेट अच्छा लगे. दिस न्यू स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट 2.5G टेक्नोलॉजी and allow existing 2G equipment to be modified and supplemented with new base station. अभी देखो 2G एग्जिस्टिंग जो आर्किटेक्चर है, 2G इक्विपमेंट जो है वही रखे, मतलब वैसे के वैसे रहेंगे वो सब चीजें, और सिर्फ उसमें कुछ तो भी नया मॉडिफिकेशन करके आप न्यू बेस स्टेशन ऐड करेंगे या सब्सक्राइबर यूनिट में कुछ तो भी सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन करेंगे. ये देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो. These new standard represent 2.5G technology and allow existing 2G equipment to be modified and supplemented with new base station add-ons and subscriber unit software upgrades to support higher data rate transmission for web browsing, email traffic, mobile commerce and location based mobile service. So देखो क्या हुआ कि कुछ तो भी हार्डवेयर में कुछ तो भी चेंज करने के बजाय कुछ तो भी नया चीज यहाँ पे ऐड किया. उसके बाद आपके जो एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन है उसमें कुछ तो भी सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन हुआ. जैसे मैंने बोला GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज ये आया. तो GPRS क्या है हम यूनिट नंबर 3 में देखने वाले हैं. उसके बाद GSM क्या है यूनिट नंबर 3 में देखने वाले हैं. तो हम ये देखेंगे. मगर आपको एक बात बताने के लिए मैं आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके लिए कि सेकंड जनरेशन और 2.5G में क्या है, सिर्फ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ तो भी चेंजेस हुए. हार्डवेयर का कंसिडरेशन वैसे के वैसे रहा, इसलिए उसको 3G नहीं बोला जाता. क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि सेकंड जनरेशन का जो जो हार्डवेयर पार्ट है, जो जो सिस्टम है, वे वैसे के वैसे रहने दिया और सिर्फ कुछ तो भी नया हार्डवेयर उसके साथ अटैच किया या सेकंड कुछ तो भी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन किए जो कि सर्वर साइड में भी किए और क्लाइंट साइड में भी किए. क्लाइंट साइड मतलब आपके मोबाइल में भी किए. तो ये दोनों मिला के कुछ तो भी नया ऐसा लाया कि उससे डेटा स्पीड बढ़ सके. मतलब डेटा स्पीड मैंने फिर से आपको बोला कि हायर डेटा रेट ट्रांसमिशन फॉर वेब ब्राउजिंग, ईमेल ट्रैफिक, मोबाइल कॉमर्स एंड लोकेशन बेस्ड मोबाइल सर्विसेज. इसके लिए आपको डेटा स्पीड अच्छा मिला 2.5 जनरेशन में. जब मतलब मिला उसको नाम दिया 2.5 जनरेशन. तो 2G और 2.5G में डिफरेंस में फिर से रिपीट करता हूं. 2G में GSM आर्किटेक्चर है, उसमें सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. मगर उसमें आप डेटा मतलब इंटरनेट एक्सेस या डेटा एक्सेस कर सकते हैं, मगर थोड़ा स्पीड लो होगा. उसमें आप कॉल भी सेटअप कर सकते हैं, SMS भी सेट कर सकते हैं. अभी वो डेटा जो है वो लो है, मतलब आपका डेटा लो स्पीड है, उसको हाई स्पीड बनाने के लिए उसमें कुछ तो भी हार्डवेयर चीज डाली गई. वो आर्किटेक्चर जो था GSM आर्किटेक्चर उसके अंदर, मतलब 2G में GSM आर्किटेक्चर समझ लो. तो वो GSM आर्किटेक्चर में कुछ तो भी ऐसे हार्डवेयर चीज डाली गई सर्वर साइड में, मतलब डाली गई में अटैच कर दी. और सेकंड कुछ तो भी सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया आपके मोबाइल के अंदर. तो उससे क्या हुआ, वो स्पीड बढ़ गया डेटा का और आप डेटा सेंट्रिक की तरफ जाने लग गए. जो कि सेकंड जनरेशन में आप सिर्फ कॉल सेंट्रिक थे.
अभी 2.5 जनरेशन में क्या हुआ, आप डेटा की तरफ जाने लग गए, जहां पे कि आपको थोड़ा फास्ट रेट से डेटा मिल सके। इसके लिए जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज ये सिस्टम लॉन्च की 2.5 जनरेशन में। इट इज कॉल्ड एज ए जीपीआरएस। सो इसके बारे में फिर से और थोड़ा मैं बोल दूं, द 2.5 जनरेशन टेक्नोलॉजी आल्सो सपोर्ट पॉपुलर न्यू वेब ब्राउजिंग फॉर्मेट लैंग्वेज called wireless application protocol that allow standard web page to be viewed in compressed format specifically designed for small portable handheld wireless device। तो देखो, जब स्मार्टफोन नहीं थे तो अपने पास है ना सिंपल से फोन भी थे, मतलब बेस फोन थे। अभी भी किसी के पास अगर घर पे बेस फोन होगा तो वहां पे आप ब्राउजर देखो कौन सा ब्राउजर है, तो वहां पे ना वेब ब्राउजर होगा, वेब। तो इट इज कॉल्ड एज ए वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा आपके मोबाइल के अंदर। तो देखो क्या आया आपके मोबाइल के अंदर, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या आया आपके मोबाइल के अंदर, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आपके मोबाइल के अंदर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये the 2.5G technology also support a popular new web browsing format language called wireless application protocol that allow standard web pages to be viewed in compressed format specifically designed for small portable handheld wireless device। तो वेब जो है वो लॉन्च हुआ आपके मोबाइल के अंदर, और जो जीपीआरएस का सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता था आपके वेब के साथ, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के साथ। और ये जीपीआरएस के जो हार्डवेयर मॉडल है वो किसके साथ अटैच कर दिए, आपके जीएसएम मतलब 2G के जो एग्जिस्टिंग डिवाइस थे उसके साथ जीपीआरएस की डिवाइस अटैच कर दिए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके आपको 2.5G की सर्विस मिलती है। इसके बाद it is interesting to note that Japan, one of the world first country to adopt commercial cellular telephone in 1970, was the first country to enjoy successful widespread mobile data service and web browser capability that preceded in introduction of web। तो web 1970s मतलब Docomo introduced the own property wireless data service and internet micro browser technology called iMode on its PDA network in 1998। तो डोकोमो देखो, पहले डाटा डोकोमो था, वो वही कंपनी है, वो टाटा डोकोमो जो था वो इस कंपनी है डोकोमो। उसने इंट्रोड्यूस किया उसका खुद का वायरलेस डेटा सर्विसेज पीडीसी नेटवर्क इन 1998। 2.5 जनरेशन एंड 3D अपग्रेडेशन पाथ जो है, अभी ये 2.5G से 3G में कैसे आया, तो देखो उसके बाद एक फिर से आया 2.75G। 2.75G, तो इट इज कॉल्ड एज ए जीपीआरएस नेटवर्क इवैल्यूएटेड टू द एज नेटवर्क। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने थोड़े स्मार्टफोन देखे होंगे जो कि अभी भी 2G के ऊपर चलते हैं, 2G के ऊपर जो चलते हैं, वहां पे देखो ई करके आता है जब नेट चालू करते हैं। या बहुत जगह पे अगर आप किसी विलेज में जाते हो या किसी जगह पे जाते हो जहाँ पे 3G का नहीं है, तो ई करके आता है ई। तो ई मतलब एज, EDG, एज। तो एज का भी फुल फॉर्म है इनास डेटा रेट इक्विपमेंट, इनास जनरेशन। तो इनास डेटा रेट यहाँ पे मिलता है जीपीआरएस के बाद, मतलब 2.5G में जीपीआरएस था, तो 2.75 में जीपीआरएस के साथ एज भी आया। एज मतलब एक कुछ तो फिर से एक हार्डवेयर है वो उसके साथ अटैच कर दिया और फिर से डेटा रेट बढ़ा दिया उसका। तो ये एज टेक्नोलॉजी, तो आप जहाँ पे जी देखते हो, जो छोटे फोन है अभी भी बेस फोन, उसके ऊपर जी दिखाई देगा, तो ये जीपीआरएस है आपका 2.5G। जहाँ पे आपको वेब ब्राउजर दिखाई देंगे, बेस फोन अगर घर में किसी के पास होंगे तो उस बेस फोन पे देखो वेब ब्राउजर होगा, मतलब आप 2.5 जनरेशन का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी कल परसों ही बहुत एक्सपर्ट की ओपिनियन ऐसा था कि इंडिया में से अभी 2 जनरेशन निकल जाना चाहिए, मतलब वो जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है 2G का वो रिप्लेस कर देना चाहिए डायरेक्टली 4G के साथ। वो भी डिस्कशन हो रहा है। तो 3G के जाने के पहले मैं आपको एक बोल दूं, अभी देखो जैसे एयरटेल है, आइडिया है,
इन्होंने 4G लॉन्च किया है, और आपका जियो फोन है जो जियो, उन्होंने भी 4G लॉन्च किया है। मगर ये दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं आपको ये थोड़ा बताने के लिए बोलता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये 3G के जाने के पहले कॉल करके देखो आप किसी एयरटेल, मेरे पास 3G फोन था पहले, मतलब ये भी मैं आपको बोल दूं कि वाई 4G मोबाइल फोन के कार्ड 3G में चलते, मगर वो उतना नेटवर्क नहीं देते, मतलब वो 3G का ही नेटवर्क देते। तो वो क्यों देते, मतलब 4G मोबाइल कार्ड 3G में डाला तो भी 4G का स्पीड नहीं आता है, तो उसके ऊपर हम आएंगे। मगर उसके पहले जो आपका जियो जो है वो प्योरली 4G नेटवर्क इस्तेमाल करता है, उसका कुछ भी 2G के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, या उन्होंने ऐसा 2G का आर्किटेक्चर ही नहीं डेवलप किया है। मगर एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये जो कंपनीज है वो उन्होंने पहले से ही 2G का आर्किटेक्चर बना के रखा था। जब वो उन्होंने स्टार्ट किया उस टाइम पे 2G था, 3G और 4G नहीं था, तो उन्होंने उसी टाइम पे वो 2G का आर्किटेक्चर लॉन्च करके रखा है। तो अभी देखो बीच में बीच में देखो कुछ तो भी ये चला था कि